Namaste, dear all students. Now, today we are going to start in lecture number 3rd. The name of the topic is a subtraction of integer through number line. अगर स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा एडिशन ऑफ इंटीजर through the number line. Now in that topic we are going to learn topic related to the subtraction. Now see here I write for example means here 5 minus 2. See student, easily you can write it down. The answer is here 3. Now again see here minus 5 minus 2. Here we are getting minus 7, right? 5 minus in bracket minus 2. Here we are getting the answer of that question is that the solution is here. We can write it down minus minus got plus 7, right? After that see minus 5 minus plus, right? 5 minus 5 plus 2. Here we are getting minus 3. Now see student, in that question I will discuss with you the rule, but first of all let me explain the subtraction of integer through the number line. Now if we show that 5 minus 2 is equal to 3, how it is possible? Now students see here the solution of first question. Subtract 5 minus 2. Now see for that we have to draw here one number line. Now let us see, this is a number line. On that number line see at the center there is a 0. Here minus 1 minus 2 minus 3 again 1, here 2, here 3, and this is 4. Now while writing this, now let us consider here again is same way the मीन जैसे आपने एडिशन में किया है सेम तरीके से सब्ट्रैक्शन भी करना है. पहला नंबर यहाँ पे 5 है तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना है नंबर लाइन के ऊपर 5 कहाँ पे है. जहाँ पे आपका 5 दिखता है 5 यहाँ पे माइनस 2 है, इसका मतलब कि 2 की जो साइन है यहाँ पे कौन सी है, माइनस है. अगर साइन माइनस रहेगी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा. अगर साइन आपको प्लस है तो आपको राइट हैंड साइड के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड को आपकी स्केल जो है वो पॉजिटिव की है और लेफ्ट हैंड साइड को आपकी जो स्केल है नेगेटिव है. बट सी दैट 2 इज हियर नेगेटिव. वंस वी जंप फ्रॉम पॉजिटिव, नाउ सी 1 यूनिट 1, दिस इज 2. सी हियर मींस 3 इज अ सॉल्यूशन. क्यों 3 इज अ सॉल्यूशन? माइनस है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए आए, राइट? बट कितने यूनिट आपको लेफ्ट हैंड साइड के लिए जाना है? 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2. मींस हेंस करके आप लिख सकते हो 5 minus 2 is equal to 3. Now this is solution of first question. Now second, see here we subtract minus 5 again minus 5 in minus 2, right? Now for this again see we have to draw here one number line. On that number line see here is 0 minus 1 minus 2, here positive 1 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6, right? Again here we can add minus 7. See student, here the first number is negative, that number is here minus 5. Now first locate that number on number line, right? Now see this is minus 5 because what, here is minus 5. Once it is minus 5, then we have to move. Now we have to check it out whether that 2 is here positive or negative. If negative is there, then we have to move left hand side. If positive is there, we have to move right hand side. Now we have to move left hand side, but how many units? Here 2, because 5 from 5 negative side 1, this is 2, now this is 7, this is minus 7 is a solution. Now let's see minus 5 minus 2, here we are getting minus 7. Hence here we can write it down minus 5 minus 2 is equal to here minus 7. Now after that see here third question is here 5 minus in bracket minus 2, right? 5 in bracket minus 2. After that see 5 minus in bracket minus 2. Student, we can write it down this 5 is as it is, but see minus into minus, here we can write down plus. Now here we are going to represent that 5 plus 2 on number line. Now for that student see draw one number line. On that number line suppose here is 0,
this is -1, right? This is +1, +2, +3, 4, this is 4, 5, 6, here is 7. Now let us see here, the first number is here 5. Now student, that 5 we have to here do like that, this is 5. Now once we select the number 5, why? Because here is 5. After that, see, there is a plus sign. If plus sign is here, then we have to move unit to the right hand side. But how many unit we have to move? Here is 2. Now let us see 1. This is 2. Sorry, this is 1. Again, this is 2. Student, that arrow is here more important. Right? Now while writing that, this arrow is indicated that from this side we rotate here and here we pause. Right? Means here till here, it means that arrow is showing here the direction of rotation, right, or movement. We see here, hence we can write it down here, -5 -2 is it, sorry, 5 -2 5 -2 is equal to, here we are getting +7. This is solution. Now after that, see here a question number 4. Here we have to represent -5 minus in bracket -2. Student, this implies that -5 we can write it down as it is, right? -5 we can write it down as it is. Here minus into minus, here we got plus, right? +2. Now this number we have to represent on a number line. Now let us see, draw one number line. Now while drawing the number line, consider this is 0, -1, -2, -3, -4, -5, right? This is -6. After that, here is +1, +2 and +3. Now see, first observe the first number is here -5. Now select that -5 number. See, the sign of that 2 is here positive. If positive is there, then we have to move right hand side. But how many unit? This 2 unit means 1, 2. Show here like a arrow. That -3 is here solution. Now see here that -7 is here solution, right? Hence here we can write it down, -5 minus in bracket -2 is equal to here we are getting -3. Now this is the solution. Now students, see, this is the representation of the the subtraction of integer through the number line. Now this is a basic concept behind this. See student, यहाँ पे मैंने आपको जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5 इन कंटिन्यूएशन, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन थ्रू द नंबर लाइन. आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है नंबर लाइन के थ्रू. आपने जो प्रीवियसली मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, सेम तरीके से आपको एक बार क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, ए में मैंने यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस और 4 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है इसके अलावा कोई भी थर्ड नंबर की पॉसिबिलिटीज नहीं आने वाली. क्वेश्चन नंबर जो बी दिया है उसमें मैंने क्या किया है, जो स्मॉलर नंबर पहले लिया है. मैं एक क्वेश्चन आपके साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा. जैसे कि देख लो, क्वेश्चन नंबर जो बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ. जैसे कि यहाँ पे देख लो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे आएगा आपका 4, राइट. यहाँ पे देख लो -1, -2, -3 आएगा. 3 जो है पॉजिटिव 3 यहाँ पे है, राइट. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. 7 की जो साइन है वो निगेटिव है, साइन निगेटिव है, इसका मतलब आपको जो स्केल है, स्केल पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. लेकिन कितने पोजीशन, 7 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, राइट. 1 2 3 4 5 6, फिर से मेरे को बढ़ाना है यहाँ पे -4 और ये क्या बन गया 7. मीन्स यहाँ पे 3 - 7 इज इक्वल टू, तब जाके सॉल्यूशन जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका, -4 आएगा. इस तरीके से आपको ट्राई करना है. यहाँ पे एक और हिंट दूंगा मैं आपको. जैसे कि देख लो, ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने से पहले उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉर्म में लिख लो. स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते आप उसे. मींस जैसे कि साइन का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इस माइनस इंटू माइनस यहाँ पे 3 प्लस क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा. और 3 + 7 को आपको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सेम तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसे भी आपको रिराइट करना पड़ेगा. -3 माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस, बट एक प्लस कितना मिलेगा यहाँ पे 7. इस -3
+7, ये दो नंबर को आपको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेम तरीके से एक जो क्वेश्चन है -7 माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, इसे आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेम तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 7 इज एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस मींस हियर +3 मींस 7 + 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। होप सो यू अंडरस्टैंड। ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर ऑल ऑफ दिस, सबके लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है आपको ट्यूशन के नोटबुक में मेंटेन करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन ट्यूशन के नोटबुक में सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में एज अ एक्नॉलेजमेंट आपको क्या करना है, एक मैसेज मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे आपको क्या करना है, सेंड करना है। See student, after that we are going to start the new topic, that is the properties of integer. Now properties of integer पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखना है, मैंने जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाई थ्रू द इंटीजर नंबर लाइन, उसमें से दो टॉपिक्स बचे हैं। एक है आपका मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा है आपका डिवीजन का। जब मैं एक्चुअल एक्सरसाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तब मैं आपका हाउ टू परफॉर्म द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्रू द नंबर लाइन, ये टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ से देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर लाइन। स्टूडेंट आई वांट टू से दैट सी, एक कंसेप्ट जो है वो सेम है, ट्रेन एक ही है, लेकिन पैसेंजर जो है वो क्या होते जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रेन कौन है और पैसेंजर कौन है, अगर इसकी अगर बात की तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये जो प्रॉपर्टीज है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा था, राइट। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ आपने पढ़ा था होल नंबर, राइट। अब आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, इंटीजर। ट्रेन एक है, पैसेंजर डिफरेंट है। इसका मीनिंग ये है कि देख लो प्रॉपर्टी तो सेम है, कंसेप्ट तो क्या है, सेम है, लेकिन चेंज क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम। ठीक है, मींस थर्ड नंबर के लेसन में आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ हियर रैशनल नंबर, राइट। किसके प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आप, रैशनल नंबर की। मींस जो नंबर सिस्टम जो है वो चेंज होते जा रही है, लेकिन जो कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे सेम है। लेकिन चलो एक बार फिर से अपन जो प्रॉपर्टीज है जिसके इंटीजर के, वो कैसे क्लासिफाइड हुए और कितने टाइप्स के प्रॉपर्टीज है, ये पूरे के पूरे और उसकी मीनिंग जो है वो मीनिंग समझ लेते हैं। नाउ सी हियर, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, दैट टॉपिक इज क्लासिफाइड इनटू, means here we are going to learn the basic 4 properties, right? How many? Basic 4 properties. Now see here, now the first property is here closure. Closure. Second property is here commutative property. Third property is here associative. Property, and the last property is here distributive. स्टूडेंट आपका कहना क्या होगा कि चार ही प्रॉपर्टी क्या, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक एक करके पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लो, व्हाट इज मीन बाय क्लोजर। क्लोजर समझाने से पहले आपको मेरे को डिस्कस करना है। यहाँ पे आप देख लो, मैंने एक सिंबल ड्रॉ किया है, इस सिंबल को बोला जाता है यहाँ पे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या बोला जाता है, सिंबल को बिलोंग्स टू। क्योंकि प्रॉपर्टी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैं ए साइन जो है, ए साइन के साथ इसका मैं यूज करने वाला हूँ। अब बिलोंग्स टू इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1, क्या किया मैंने, a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू क्या है, -1। क्या आप मेरे को बोल सकते हो a और b ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग्स करते हैं, राइट। आप भूल गए होंगे, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है इसको मैंने इंडिकेट किया था n से, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो पढ़े होल नंबर, उसको मैंने इंडिकेट किया था यहाँ पे w से, ठीक। उसके बाद में आपने पढ़ा था इंटीजर, मैंने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे i
और यूज किया था बताओ, z से, राइट। ये क्या इनका मिस नोटेशन है। आपको पता है नेचुरल नंबर मिस कौन से आते हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इंटीजर मींस इंटीजर जो आते हैं डॉट 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 3 2 1 0 -1 -2 अगेन हियर -3, राइट। ये क्या रहते हैं आपके इंटीजर रहते हैं। अब मेरे को बताओ मींस आप पढ़ जो रहे हैं यहाँ पे बिलोंग्स टू सेम फैमिली, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 है। ये दोनों के दोनों जो नंबर है इनमें से मैं कंटिन्यूस मींस साइमल्टेनियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों जो नंबर है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1, ये कहां से बिलोंग्स करते हैं देख लो। यहाँ पे 1 है बट -1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 है बट -1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 भी है -1 भी है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग्स कर रहे हो, इंटीजर से। होप सो यू अंडरस्टैंड। बट उसे इस साइन का यूज करके लिखते कैसे है, a कॉमा b मींस a एंड b बोथ द नंबर, मैं और नहीं बोल रहा हूं, मैं एंड बोल रहा हूं, a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू i, बट i मींस व्हाट, इंटीजर। i मींस क्या है यहाँ पे आपका इंटीजर है। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय बिलोंग्स टू। नाउ आफ्टर दैट सी फर्स्ट इज टॉपिक इज हियर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मींस यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, राइट। 1 प्लस इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू मेरे को -1 मिलेगा, राइट। उसके बाद में सेकंड जो है वो कौन सा है यहाँ पे, -1 + 2 इज इक्वल टू मेरे को +1 मिल रहा है, राइट। -1 प्लस इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, -3 मिल रहा है। स्टूडेंट मैंने एडिशन क्यों की, क्योंकि आपको क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों के तीनों चारों के चारों जो प्रॉपर्टी है ये किस किस के लिए है, ये तो एडिशन के लिए है, राइट। मैंने एग्जांपल आपको एडिशन का दिया है। क्यों एडिशन बोल रहा हूं मैं इसे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, राइट। सेकंड चीज, ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, राइट। थर्ड नंबर, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, राइट। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए है, डिवीजन के लिए है। चारों के चारों, पर सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ब्रैकेट एडिशन, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो 1 + 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस -2 इज इक्वल टू -1, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, -1 + -2 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देख लो, बट दैट देख लो ये 1 -2 1 -2। अब मेरे को बताओ ये -1 एंड 2 ये किस में से बिलोंग्स कर रहे हैं, i से। i मींस क्या है यहाँ पे, इंटीजर। जब जब मैं i बोलते जाऊंगा तब तक आपको क्या बोलना पड़ेगा उसे, i मींस व्हाट, इंटीजर। i क्या है, इंटीजर है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने मान लिया a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 2 इसमें, राइट, मींस वेयर मींस a इज इक्वल टू मैंने क्या माना यहाँ पे -1 एंड b इज इक्वल टू क्या माना, 2 माना। अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, a + b इज बिलोंग्स a + b इज बिलोंग्स टू हियर। कहां से बिलोंग्स कर रहे हो, i में से करते हैं। अगर वो i में से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, means the addition means the closure property is hold true for addition। इस कोई भी कंडीशन में, चाहे यूनिवर्स के कोई भी दो इंटीजर को अगर आप ऐड करोगे, अगर उसकी एडिशन इंटीजर आएगी। अब देख लो मेरे साथ, देख लो इधर, 1 प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। मींस चाहे कोई भी इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर अगर ऐड करोगे तो उनकी जो सम आती है ये पूरे के पूरे नंबर क्या रहते हैं, यहाँ पे इंटीजर रहते हैं। इसका मतलब मींस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है,
अगर इंटीजर में आप इंटीजर के साथ में ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन आपको मिलता है वो क्या मिलता है, आपको इंटीजर मिलता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन। एक क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के ऊपर किसके लिए है, ये एडिशन के लिए। अब सेकंड चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो अपन पढ़ गए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, ये जो बन गए ऊपर के उनके क्या है, एग्जाम्पल्स है। ये क्या है, पूरे के पूरे उसके एग्जाम्पल है। होप सो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। सेकंड जो आपको पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है और उसमें क्या है, जब आप थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थे आपको माइंड में क्वेश्चन आया होगा, क्या सर 3 में अगर 2 के साथ में ऐड किया तो 5 आता है, क्या हम 2 को 3 के साथ में ऐड नहीं कर सकते क्या? उसका सॉल्यूशन तो क्या है, 5 है। ये जो आपके दिमाग में से एक क्वेश्चन का जो आंसर जवाब देने के लिए वो जो प्रॉपर्टी है मैथ्स में वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लो मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 + 2 = 2 + 3 आता है। देख लो ये कितना है, 6, ये कितना आएगा, 6 आएगा। सेकंड चीज आपके लिए, सॉरी यहाँ पे 3 + 2 जो आता है 5 आता है, और 3 + 2 ये कितना आता है, 5 आता है, राइट। आफ्टर दैट मैं दूसरा नंबर दूंगा, -3 + 2 = 2 प्लस इन ब्रैकेट -3। अब देख लो -3 में से 2 गया, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, और 2 + 3 आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे किस तरीके से लिखूं, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये -3, ये भी कितना बनेगा आपका, -1 बनेगा। इस -1 = -1 बनता है, राइट। सेकंड चीज देख लो, यहाँ पे मैं नंबर को चेंज कर रहा हूं, देख लो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों क्या थे, निगेटिव, मींस यहाँ पे क्या था, एक निगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, राइट। थर्ड जो कंडीशन आएगी, 3 प्लस इन ब्रैकेट -2 = -2 + 3 है, राइट। अब देख लो यहाँ पे मैंने प्लस की साइन, प्लस की साइन, प्लस की साइन, और यहाँ पे भी प्लस की साइन यूज करी, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर जो पढ़ रहा हूं मैं कौन से कंसेप्ट के लिए पढ़ रहा हूं, एडिशन के लिए। अब यहाँ पे देख लो 3 + -2 इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव 1 आएगा, -2 + 3 इसका भी सॉल्यूशन पॉजिटिव 1 आएगा। इसका मतलब LHS = क्या लेते हैं, RHS। मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। 3 + 2 के सॉल्यूशन अगर 5 आता है, क्या 2 + 3 ये 5 नहीं हो सकता है क्या, ये होता है, लेकिन ऐसे एडिशन के लिए चलता है क्या, चलता है। अगर चलता है तो इसका मतलब क्या है, एक और कंडीशन देख लो, -3 + -2 = -2 + -3 मींस -3 + -2 इसका सॉल्यूशन आएगा -5 = -5। स्टूडेंट देख लो यहाँ पे भी करेक्ट है, यहाँ पे भी LHS = RHS आता है, यहाँ पे भी LHS = RHS आता है, यहाँ पे भी LHS = RHS आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा, कैसे कि A + B = क्या रहता है, B + C रहता है। अगर A + B = B + C रहता होगा तो यहाँ पे एक साइन लिख रहा हूं, A, B, ये जो बिलोंग्स कर रहे हैं ये कहां से रहेंगे, इंटीजर में से रहते हैं। सॉरी यहाँ पे A + B = लिखा मैंने, यहाँ पे B प्लस क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, A लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो यहाँ पे देख लो, बट A एंड B जो है ये क्वेश्चन में वो क्या है, A एंड B आर क्या रहेंगे आपके, इंटीजर रहेंगे। A एंड B क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। बट यहाँ पे मैंने लिखा दो इंटीजर की सम जो आती है वो इंटीजर अगर आती होगी तो इसका मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है ये क्या करती है, होल्ड ट्रू करती है, राइट। सेम तरीके से A + B = B + A। अब देख लो चारों के चारों कंडीशन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके बताया। अगर ये चारों के चारों इसमें अगर ट्रू आता होगा, क्यों ये चारों के चारों, देख लो यहाँ पे दो टर्म पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था, एक पहला पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, दूसरा क्या था, पहला ही नेगेटिव है दूसरा ही क्या है, नेगेटिव है। अगर ये पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, अब इससे ज्यादा फॉर्मेशन जो है एडिशन में नंबर सिस्टम में तो फॉर्म नहीं होते, मैक्सिमम चांसेस ये है, इससे ज्यादा एक फिफ्थ नंबर का कोई भी फॉर्म नहीं होता। बट यहाँ पे देख लो A + B = B + A आपको जब मिलता है, A, B बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग्स करते हैं, इंटीजर से रहते हैं। इसका मतलब
ये क्या करता है, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर किसके लिए है, इंटीजर के लिए है। इंटीजर के लिए क्या करती है, प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करती है, उसका जो फॉर्मूला ये बन गया। इसका मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर इंटीजर। स्टूडेंट मैं यहाँ पे एडिशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये देख लो ये भी एडिशन की प्रॉपर्टी है, राइट, ये भी किसकी है, एडिशन की। अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कैसे रहती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, यहाँ पे आपने एडिशन के साइन यूज किए हैं, यहाँ पे भी आपने कौन से साइन यूज किए हैं, एडिशन के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है, now see after that we have to learn here associativity property। अब स्टूडेंट associativity property क्या है, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, जैसे कि 3 + 2 + अगर 1 है तो इसमें देख लो ये तीनों के तीनों को तो एट ए टाइम आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं तीनों के तीनों का एट ए टाइम ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको करना है या ऐड, इसके मींस सबसे पहले आपको ये सोचना है क्या ये 3 को 2 के साथ में कर लूं, 3 को 2 के साथ में करने के 5 मिल जाएगा, फिर उसके बाद में मेरे को क्या मिल जाएगा, 5 + 1 6 मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन आपके पास में ये आ सकती है, क्या मैं 2 और 3 को यहाँ पे ऐड करूं, पहले 2 और 3 को ऐड करने के बाद में क्या मैं उसे ये 3 के साथ में ऐड कर लूं, फिर भी मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाता, 6 मिल जाता। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का एक्चुअल में क्या रहता है, जब आप यहाँ पे देख लो 3 + 2 + 1 मीन्स यहाँ पे बॉडमास का यूज कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 3 + 2 + 1। जो बच्चों को ये समझ में आया, बेटा ब्रैकेट मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो 2 + 1 को ऐड करना है, जैसे कि 3 + 2 + 1 की जो सम आएंगी वो 3 आएंगी, इज इक्वल टू अगर आपने LHS को 2 + 1 को पहले ऐड किया तो RHS को आपको किसको ऐड करना है, 3 + 2 को। अब 3 + 2 को आप जैसे ऐड करोगे उसकी सम जो आएगी वो आएंगे यहाँ पे 5 और ये जो 1 है एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब 3 + 3 कितना बनता है, 6 बनता है, इज इक्वल टू 5 + 1 कितना बनता है, ये भी कितना बनेगा यहाँ पे 6 बनेगा। मींस यहाँ पे आपको ये करना है, मींस ये आपको सोचना है क्या ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए होल्ड ट्रू करती है क्या, हाँ करती है। ये कब पॉसिबल है, A + इन ब्रैकेट B + C। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपने कितने नंबर को मींस कितने नंबर को ऐड किया था, 2। यहाँ पे आपने कितने नंबर को कंपेयर किया था, 2 नंबर को। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जब आएंगी तब यहाँ पे आपको ये सोचना है ये 3 प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ये कितने प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, 3 प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। मींस A + इन ब्रैकेट B + C इज इक्वल टू, इसमें उन्होंने क्या किया, पहले B और C की एडिशन परफॉर्म की। नेक्स्ट इसमें वो क्या कर रहे हैं, A + B आउटसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, C है। इसका कहने का मतलब है चाहे आप मींस फिर से बता रहा हूं मैं, जैसे कि 3 + 2 + 1 रहेगा इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 रहेगा। इसका मतलब ऐसा है 3 को 2 के साथ 2 को 1 के साथ में ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे क्या है 3 को अगर आप 2 के साथ में अगर ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। ये जो है 6 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 6। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर एडिशन, राइट। किसके लिए होल्ड ट्रू करती है, एडिशन के लिए। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, होल्ड ट्रू फॉर एडिशन लिख लो, राइट। यहाँ पे भी आपको होल्ड ट्रू फॉर किसके लिए रहती है, एडिशन के लिए क्या रहती है,
होल्ड ट्रू करती है, राइट। अब ये होने के बाद में सेकंड जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी बची, स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, वो किसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं अपन, पूरे के पूरे प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर, बट यहाँ पे आपका एक ही बचा है, ये जो ए बी सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर, ये कौन से नंबर है आपके, इंटीजर रहेंगे। कौन से नंबर रहेंगे, इंटीजर नंबर रहेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि देख लो 3 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 2 + 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू, अब एक क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 को एक बार 2 के साथ में और 3 को एक बार 1 के साथ में, बीच में जो साइन रहेगा वो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय हियर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय हियर 2 प्लस हियर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख लो यहाँ पे, इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बॉडमास का यूज करोगे तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को। मींस यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, ये 3 आएगा, इज इक्वल टू 3 2 जा कितना आता है 6, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 जा, हियर वी आर गेटिंग 9 इज इक्वल टू 6 + 3, हियर वी आर गेटिंग 9। इसका मतलब क्या है, जो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहती है वो भी क्या करती है, होल्ड ट्रू करती है। किसके लिए होल्ड ट्रू करती है, ये एडिशन के लिए। क्यों एडिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, एडिशन का यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे सेकंड देख लो, मींस यहाँ पे जो लिखना है, मींस a मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट b + c इज इक्वल टू हियर a इंटू b। यहाँ पे देख लो, a को एक साथ b के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना, a को एक साथ c के साथ में, अदरवाइज दिस इज द टोटली द प्रोडक्ट ऑफ वन ब्रैकेट, राइट। सेकंड जो है, a को एक बार b के साथ में और a को एक बार c के साथ में मल्टीप्लाई करना, मींस a मल्टीप्लाई बाय c, राइट। बट आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा, a, b एंड c आर, ये क्या है आपके इंटीजर नंबर रहेंगे। ये कहां से बिलोंग्स करेंगे, इंटीजर से करेंगे। और आप उसे ऐसे ही लिख सकते हो, a, b एंड c आर बिलोंग्स टू, मैंने आपको साइन का मीनिंग बता दिया है किससे बिलोंग करते हैं, आई में से, और आई मींस व्हाट, integer. Now see, today we see in this lecture the properties of integer only for what, addition, right. But tomorrow we are going to start, in next lecture we are going to study that property for, that is for the subtraction, multiplication and division. Thank you.